Welcome back, students. We have finished the theory of the first chapter of chemistry, chemical reactions and equations. Today we are going to look at the solutions to the end of the chapter problems of our NCERT book. This is Minish Gulati on behalf of Happy Model Higher Secondary School at Udhampur, bringing to you this lesson. Now let's look at question number 1. You can keep your science books in front of you, but even if you don't have the book, I have put the question on the screen itself. Let's read the question first. Which of the following statements about the reaction below are incorrect? 2 lead oxide plus carbon forms 2 lead plus carbon dioxide. Now here, this is a question about redox reactions. हम देख सकते हैं lead जो है is losing oxygen to become lead oxide is losing oxygen to become lead and carbon is gaining oxygen to become carbon dioxide. Right? Now, addition of oxygen is called oxidation. So carbon is getting oxidized, adding oxygen to become carbon dioxide. So this is right. First, let us look at all the rights. Then, अगर कार्बन की ऑक्सीडेशन होती है तो इसका मतलब लेड की रिडक्शन होती है. लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन. सो लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड. फिर ये ए और गलत वालों को देखते हैं. लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड. नो, लेड इज नॉट गेटिंग रिड्यूस्ड. लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रही है तो लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड. लेड तो बन रहा है. फिर कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. नो, कार्बन डाइऑक्साइड तो बना है. हम रिएक्टेंट्स को देखते हैं. कार्बन ने ऑक्सीजन गेन किया है तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. सो ए एंड बी आर रॉन्ग एंड सी एंड डी आर राइट. तो हमको लेकिन ढूंढना क्या था कि कौन से गलत हैं. तो गलत कौन है? वो तो ए और बी गलत है. इसलिए हमको हमारा आंसर है 1, that is A and B. Statement A and statement B is wrong. Okay. So whenever we say which is getting oxidized or which is getting reduced, so we should look at the reactant side. बाद में products बनते हैं. Alright. अगर आपने redox reaction का कल वाला लेसन देखा है तो then you will be able to easily understand and attempt this question. Let's go to question number 2. It says Fe2O3 plus 2 aluminum reacts to form Al2O3 aluminum trioxide plus iron Fe. The above reaction is example of. तो आप देख सकते हो एल्यूमिनियम किसकी जगह आ गया? आयरन की जगह. Why? Because aluminum is more reactive metal as compared to iron. रिएक्टिविटी सीरीज कराया था ना मैंने आपको. अपनी कॉपीज को टर्न करो. रिएक्टिविटी सीरीज आपने नोट किया है, वहां से देखें आप उसको. तो यू विल फाइंड दिस इज कॉल्ड अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. राइट. सो मोर reactive aluminum has displaced the less reactive iron to form aluminum oxide. So it's not a combination, it's not a double displacement, it's not a decomposition, it is just a single displacement or displacement reaction. Third question says, what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron filings? Tick the correct answer. So I have iron filings matlab लोहा, iron Fe, and I add acid to it, 2HCl. तो मेरे पास बनेगा ferrous chloride and hydrogen gas. It is again a single displacement reaction. बट बच्चों पता कैसे चलेगा ये FeCl2 बनेगा? ये तो क्लास 9th में पढ़ा है हमने. एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ आपको. आयरन वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1. क्रिस क्रॉस मेथड 9th क्लास में पढ़ा था. तो इसकी वैलेंसी आयरन की 2, क्लोरीन की 1, तो क्रिस क्रॉस हो जाता है.
तो Fe को 1 मिलता है और Cl को 2 मिलता है, तो FeCl2. सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ आयरन क्लोराइड इज FeCl2. सो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे, 2HCl. सो मेटल्स प्लस एसिड्स, हाइड्रोजन गैस तो बनती ही बनती है, राइट. सो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, right. So that is A is the right answer, and that is the way you need to show it, and this reaction is called a displacement reaction. Question number 4, what is a balanced chemical equation? Why should chemical equations be balanced? Now refer to your notes. We have spent one full lecture on a balanced chemical equation and the need to balance it, importance of balancing, how to make chemical equations more informative. So this is part of the notes, so we don't need to discuss again or even write again. You have already written. Question number 5, translate the following statements into chemical equations and then balance them. तो ऐसा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं. जरा देखिए, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया. तो हमने हाइड्रोजन गैस H2 गैस प्लस नाइट्रोजन गैस फॉर्म्स अमोनिया NH3. अमोनिया का फॉर्मूला आना चाहिए NH3. नहीं आता है तो आओ देखो, हाइड्रोजन ग्रुप 1 को बिलोंग करता है, वैलेंसी 1 होती है. नाइट्रोजन ग्रुप 5 को बिलोंग करता है, उसकी वैलेंसी 3 होती है. दैट मीन्स नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके वो उसका ऑक्टेट रूल जो है वो सेटिस्फाई होगा. तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, हाइड्रोजन की 1, क्रिस क्रॉस मेथड, इधर का उधर उधर का इधर. सो नाइट्रोजन को 1 मिलेगा इसके नीचे और हाइड्रोजन को H3. सो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अमोनिया इज NH3. तो हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन ये बनता है, बट दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन. तो पहला स्टेप है क्या बनता है. फिर नेक्स्ट स्टेप में बैलेंस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ तो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 है. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हाइड्रोजन को, और इसको 2 से करते हैं ताकि नाइट्रोजन भी बैलेंस हो जाए. N2, यहाँ पे एक N था, तो अब हम देख सकते हैं 3H2, 3 molecules of hydrogen plus 1 molecule of nitrogen forms 2 molecules of ammonia. ठीक है बच्चों. पीरियोडिक टेबल आपके सामने होना चाहिए, 9th क्लास की बुक में, इवन 10th की बुक में है पीरियोडिक टेबल. इफ यू गो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स तो आप वहाँ से वैलेंसी देख सकते हैं. आई होप यू नो अबाउट वैलेंसी, क्लास 9th में आपने पढ़ा है. अगर नहीं पढ़ा है, नहीं पता है ये, तो प्लीज़ लेट मी नो. आई विल हैव टू टेक अनदर special class for you for molecular formulas using criss-cross method. Let me know in the school group only you can write, then I will do a special class for you. Now hydrogen's B part, B, 5th question number 5 का B part. Hydrogen sulfide gas burns in air. Hydrogen sulfide gas burns in air to give, let me just show you that. Let's look at the question first. So hydrogen sulfide gas burns in air to give water and sulfur dioxide. तो जो बोला है उसको लिख लो. हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला बोलेंगे सर हमको नहीं आता, तो कोई बात नहीं, H लिखो, S लिखो. हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फर की वैलेंसी 2 होती है, तो क्रिस क्रॉस मेथड से फॉर्मूला बनेगा, हाइड्रोजन 2 के नीचे आएगा और सल्फर 1 के नीचे, तो H2S. सो H2S स्ट्रक्चरल इक्वेशन लिखते हैं पहले, बैलेंस नहीं, जस्ट स्ट्रक्चर. हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस, जब भी एयर बोलते हैं इसका मतलब होता है ऑक्सीजन. ऑल्दो एयर के अंदर नाइट्रोजन भी होता है, बट इन केमिस्ट्री व्हेन वी से burns in air, burning में oxygen plays a role. So H2S plus O2 forms water, H2O plus SO2, sulfur dioxide. बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस देखो बच्चों,
हाइड्रोजन देखो यहाँ पर 2 है, इधर भी 2 है, वेरी गुड। सल्फर एक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन तो यहाँ पर 2 हैं, लेकिन यहाँ पर तो 3 है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। लेट अस बैलेंस इट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वाटर को। अब क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गई हमारे पास कितनी, यहाँ पर 2, इसको भी मल्टीप्लाई किया 2 से। और मे बी यू कैन स्टार्ट विद लुक एट दिस, आई हैव ऑलरेडी बैलेंस्ड इट, व्हाई डोंट यू लुक एट इट, चेक क्या ये 2 3 2 2 से बैलेंस हो रही है। बैलेंसिंग सिखाया ना। तो all the number of atoms of every element should be the same। यहाँ पे let's start with sulfur। सल्फर के 2 हैं, इधर देखो यहाँ भी सल्फर के 2 हैं। हाइड्रोजन H2 N2 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन कितना है, 6 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पर 4, 2 + 4 6। तो इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड हो गई है, राइट। So now let us look at the C part। It says barium chloride reacts with aluminum sulfate to give aluminum chloride and a precipitate of barium sulfate। So barium chloride reacts with aluminum sulfate to give aluminum chloride and a precipitate of barium sulfate। वर्ड्स हैं, हमको सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा ना, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, और बेरियम सल्फेट का क्या है। तो हम वापस अपने क्रिस क्रॉस मेथड में जाएंगे। एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करता हूँ। एल्यूमिनियम सल्फेट आयन होता है SO4। SO4 आयन इज 2-, हैज अ वैलेंसी ऑफ 2। एल्यूमिनियम हैज अ वैलेंसी ऑफ 3। तो क्रिस क्रॉस मेथड से SO4 को 3 मिलेगी, एल्यूमिनियम को 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट विल बी Al2SO4 होल थ्राइस। एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। लेट्स लुक एट एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम की 3, क्लोरीन की 1, क्रिस क्रॉस से एल्यूमिनियम को 1 और क्लोरीन को 3, दैट मीन्स AlCl3। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबसे पहले। व्हाट अबाउट बेरियम सल्फेट? सल्फेट कभी भी देखा हमने, सल्फेट आयन की वैलेंसी 2 होती है, बेरियम की भी 2 होती है। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, BaSO4। 2 2 मतलब 1 1, दोनों सेम हो तो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर में लिखते हैं। तो बेरियम सल्फेट इज BaSO4। सो बेरियम क्लोराइड इज BaCl2, बेरियम इज 2, क्लोरीन इज 1। तो यहाँ पे ये आप कर सकते हैं बेरियम क्लोराइड के लिए। क्लोरीन की वैलेंसी 1, बेरियम की होती है 2। सो ये बनेगा क्रिस क्रॉस मेथड से बेरियम क्लोराइड। नाउ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पहले लिखते हैं और बाद में उसको बैलेंस भी कर सकते हैं। आप 2 बार लिखना, मैंने एक ही बार में कर दिया। पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बेरियम क्लोराइड, सिर्फ ब्लैक ब्लैक वाले, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्म्स एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। नाउ वी हैव टू बैलेंस। क्लोरीन यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 3 है, तो हमको इसको इवन नंबर करना पड़ता है ना, 3 2 6, और इसको इवन किया है तो ये भी यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्लोरीन हमारी बैलेंस हो गई, 6 6 हो गया। बेरियम 3 है, तो यहाँ पर तो 1 है, तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेरियम भी 3 हो गए, वेरी गुड, ये मॉलिक्यूल खुश हो गया है। अब हम देखें एल्यूमिनियम सल्फेट को। तो एल्यूमिनियम तो ऑलरेडी हमने क्लोरीन को बैलेंस किया था, तो यहाँ 2 लगा ही दिया हुआ हमने, तो एल्यूमिनियम भी हमारा खुश हो गया है। सल्फेट को देखो, SO4 होल थ्राइस, तो SO4 यहाँ है, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये भी हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो 2 स्टेप्स में आप लिखेंगे, पहले सिर्फ ब्लैक इक्वेशन इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड बैलेंस्ड इक्वेशन इज विल कम अंडर दिस। ठीक है बच्चों? Now let us look at the last, which is potassium metal reacts with water to form potassium hydroxide and hydrogen gas। हमने पढ़ा था ना, potassium is even more reactive than hydrogen। So what will happen is it's a very active metal। So
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. दिस इज अ स्ट्रक्चरल इक्वेशन, राइट. नाउ हाउ डू यू बैलेंस इट? यहाँ पर देखो H2 दो हैं, यहाँ पर दो तीन हो गए H, तो इसलिए बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी हमको. तो हमने इसको बैलेंस इस तरह से किया है, 2KOH एंड 2K एंड 2H2O. बैलेंस चेक करते हैं. पोटेशियम दो हैं, इधर भी दो हैं. हाइड्रोजन चार हैं, यहाँ पर दो यहाँ पे और दो यहाँ. ऑक्सीजन दो हैं तो यहाँ पे भी दो हैं. तो बैलेंस हो गई हमारी इक्वेशन, राइट. Question number 6. Balance the following chemical equations. Nitric acid HNO3 plus calcium hydroxide forms calcium nitrate plus water. बैलेंस करने के लिए मैंने इसको 2 से इसको और 2 से इसको किया है. ऊपर देखिए प्लीज, बोलने की तो जरूरत नहीं है, आपको बैलेंसिंग हमने सिखाई है. टेक दिस एज अ होमवर्क, ये आपको आंसर मैं दे रहा हूँ, अब चेक करें बैलेंस हुआ है क्या. ऑलराइट, तो ये कर सकते हैं ना. लेट मी लुक एट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH आयन की वैलेंसी 1 होती है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो ये बन जाएगा क्रिस क्रॉस से कैल्शियम CaOH होल ट्वाइस. सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH होल ट्वाइस. कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2. कैल्शियम कार्बोनेट, इसको भी आप चाहें तो कार्बोनेट आयन को भी कर सकते हैं. कार्बोनेट आयन की वैलेंसी भी 2 होती है, कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 है, तो ये बनेगा CaCO3 प्लस वाटर, राइट. और अब मैं देखूं इसको तो कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर दो हैं, यहाँ पे दो हैं, चार, यहाँ पर तीन है, एक यहाँ चार, सही है. हाइड्रोजन दो हैं, यहाँ पे भी दो हैं, मतलब ये ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस्ड है. बी पार्ट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट फॉर्म्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर. सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है. NO3 कैसे? N की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की 2 होती है, 3 ऑक्सीजन है तो 6 हो गया, टोटल 9 हो गया. तो 9 ऑक्टेट के लिए क्या करना पड़ता है? 8 का रूल, 8 माइनस कर दो, 9 माइनस 8 1. सो NO3 आयन की वैलेंसी होती है 1. सो NO3 की वैलेंसी 1 एंड सिल्वर की वैलेंसी भी 1 होती है. सो देयरफॉर ये मॉलिक्यूल बनेगा AgNO3. जिंक जो है, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट की 1 है, तो ये हमारा क्रिस क्रॉस मेथड से बनेगा ZnNO3 होल ट्वाइस. 9th क्लास का क्रिस क्रॉस, आपको प्लीज केमिस्ट्री में अच्छा होने के लिए ये मॉलिक्यूल का फॉर्मूला आना जरूरी है. तो 9th क्लास की कॉपी भी खोलिए, उसको वहां से भी रिवाइज कीजिए, बुक भी खोल के देख सकते हैं, वो तो आपके पास है. मेरे से हेल्प चाहिए तो मुझे आप बता सकते हैं. सो मैंने इसको बैलेंस करने के लिए NO3 होल ट्वाइस है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, सिल्वर को भी 2 से करना पड़ा, तभी यह इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगा, राइट. नाउ C पार्ट सेज कॉपर एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड. कॉपर की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1, तो ये बनेगा CuCl2. So aluminum plus copper chloride forms aluminum chloride. Aluminum की वैलेंसी 3, क्लोरीन की 1, so AlCl3. ये मॉलिक्यूलर का फॉर्मूला, ये तो बार बार तो ऐसे करके याद हो जाता है, लेकिन हमको बच्चों को सबको निकालना आना ही चाहिए. प्लस कॉपर, बैलेंस किया इक्वेशन को. 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 कॉपर क्लोराइड फॉर्म्स 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस 3 कॉपर. बैलेंस चेक कीजिए बच्चों, पॉज करिए, बैलेंस चेक कीजिए. फिर इसका भी लास्ट पार्ट, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड. बेरियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1. पता कैसे चलता है बेरियम की 2 है?
पीरियोडिक टेबल देखिए, ग्रुप 2 एलिमेंट्स है ना। ग्रुप 2 एलिमेंट्स का क्या गाना होता है, बेर महंगे करके सरकार बहुत रोएगी। अभी जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल सिखाऊंगा तो मैं आपको ये गाने सिखा दूंगा। ओके, सो बेरियम क्लोराइड इज BaCl2। पोटेशियम सल्फेट, सल्फेट आयन की वैलेंसी जो है वो 2 होती है, पोटेशियम की 1 होती है, तो क्रिस क्रॉस मेथड से बनेगा K2SO4। जैसे H2SO4 होता है वैसे K2SO4। एंड बेरियम सल्फेट, बेरियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की भी 2, तो इसलिए BaSO4। पहले भी कराया एक बार एक क्वेश्चन में, फिर से कर रहा हूं मैं। एंड पोटेशियम क्लोराइड इज KCl। बैलेंस किया तो मुझे सिर्फ यहाँ पे K2 है तो यहाँ पे भी 2 डालना पड़ा, क्लोरीन भी 2 है इसलिए सिर्फ यहाँ पर हमको ब्लू से 2 डालना पड़ा। इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई है। राइट, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8। फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में भी खूब आते हैं। इट सेज पोटेशियम ब्रोमाइड KBr एंड बेरियम आयोडाइड, बेरियम की वैलेंसी 2, आयोडीन की 1, इसलिए BaI2 फॉर्म्स पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। बेरियम की 2, ब्रोमीन की 1, इसलिए BaBr2। बैलेंस किया, 2 इधर लगाया और 2 यहां लगाया। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट, आप देख सकते हैं के Br के साथ था, अब के I के साथ हो गया, और ब्रोमीन जो है पोटेशियम के साथ है, ब्रोमीन बेरियम के साथ। डबल डिस्प्लेसमेंट, double, we have taken a special class on double displacement reactions. Okay, this is a double displacement reaction. Zinc carbonate converts into zinc oxide plus carbon dioxide। एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट के 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, ये उसकी इक्वेशन है। एंड सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड अ decomposition reaction, where a big molecule breaks into smaller molecules, it's called a decomposition reaction. Hydrogen plus chlorine forms hydrogen chloride. It's a synthesis reaction or a combination reaction, opposite of decomposition. Decomposition में एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट के 2 मॉलिक्यूल बनता है, और कॉम्पोजिशन में या सिंथेसिस में 2 मॉलिक्यूल्स जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन। फिर मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड फ्रॉम मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। तो मैग्नीशियम क्लोराइड आ रहा है, हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है, किसी के साथ जा नहीं रहा है, लिबरेट हो रहा है हाइड्रोजन, देयरफॉर इट इज अ डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। राइट, we have already studied with you what do you mean by exothermic and endothermic reactions. Exothermic reactions are those reactions in which heat is liberated, heat is given out when a reaction takes place. एक्सो का मतलब ही होता है एग्जॉस्ट, हीट का बाहर जाना, है ना, गाड़ी से एग्जॉस्ट होना, बाहर निकलना। एक्सोथर्मिक मीन्स हीट गोइंग आउट। वो रिएक्शन जब होता है तो गर्म हो जाता है। चूने को हम पानी में डालते हैं तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, दोज रिएक्शंस in which cooling takes place, heat is absorbed from the surrounding, is called an endothermic reaction. Right, we have done exothermic and endothermic reactions with you with examples, right? So please take a note from there only, copy में लिखा हुआ हमने। And the 10th question is, what is respiration, or why is respiration considered an exothermic reaction? तो पिछले क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ से आ सकता है। Explain respiration। देखो बच्चों, जब आप सांस लेते हो फिर अपनी नाक से सांस छोड़ो, हाथ रखो नाक के आगे, आप देखेंगे गर्म हवा आ रही है। तो जब हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं और आप ब्रीथ आउट करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, हमारी बॉडी भी गर्म होती है इससे, है ना। बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ब्रीदिंग की वजह से ही होता है, बिकॉज रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Now let's understand this. Energy is required, we all know, to maintain life.
we get energy from the food that we eat. During digestion, big molecules are broken down into simpler molecules of glucose. So glucose is the basic currency of energy of the body. हम जो भी खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, शुगर्स में कन्वर्ट होता है. तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6. तो राजमा चावल भी खाओगे ना तो भी ग्लूकोज बनेगा, और आप फुल्का चपाती के साथ कुछ सब्जी खाओगे तो भी बाद में ग्लूकोज ही बनता है. सो ग्लूकोज का क्या होता है, फिर बॉडी करती क्या है ग्लूकोज का? इन द सेल ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ. Glucose plus oxygen is in this reaction we have water is produced and carbon dioxide is produced. सेल्स, हर एक सेल में ग्लूकोज पहुंचाया जाता है, और जो ऑक्सीजन ब्लड लेके जाते हैं वहां पे सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, सेल्स की रेस्पिरेशन, एंड वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस प्लस हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस. तो अपने हाथ को टच करो, टांगों को टच करो, गर्दन को टच करो, आप कहोगे ना गर्म है ये गर्म कैसे हो गया वहां पे? बिकॉज हर एक सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है. ये सब रिएक्शन हमारे हर एक सेल में हो रहे हैं. वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है टू द लंग्स, एंड लंग्स उसको एक्सचेंज करते हैं विद द सराउंडिंग्स ड्यूरिंग ब्रीथिंग. इन दिस रिएक्शन heat is produced. तो when a person dies, हम बोलते हैं ठंडा, स्पेशली ठंडा पड़ रहा है. ठंडा क्यों पड़ रहा है? बिकॉज उसकी बॉडी में रेस्पिरेशन बंद हो गई. अब रेस्पिरेशन बंद हो गई तो ये रिएक्शन होना बंद हो गया. अब इस रिएक्शन में ही तो हीट पैदा होती है. तो शरीर ठंडा हो रहा है का मतलब रेस्पिरेशन नहीं हो रही है. This reaction is an ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है is called a exothermic reaction. So thus combustion reaction is which is called as respiration is an exothermic reaction in which heat is liberated or used. फिर ये क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो 11 से लेके 20 तक. These are all straight forward questions. मैंने नोट्स के दौरान आपको ये दिए हैं, तो इनको फिर से लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि नोट्स में हमने लिखा हुआ है, राइट. सो यू कैन हैव अ लुक एट देम. क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20. इनमें से अगर आपको कुछ भी नहीं आता, फॉर एग्जांपल 18th है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स. तो पेंट करने से बच्चों क्या होगा? आयरन का कॉन्टैक्ट विद द एयर विल बी ब्रोकन, आयरन का कॉन्टैक्ट विद वाटर विल बी ब्रोकन, एंड देन corrosion will not take place, right? ये हमने पढ़ा है ना, वाई आर फैटी फूड्स, अंकल चिप्स को हम नाइट्रोजन के पैकिंग क्यों करते हैं? फिर टू अवॉइड रैंसिडिटी. ये सब पढ़ा है, करोजन, रैंसिडिटी सब पढ़ा है मैंने आपको. ओके, सो ये फिर से क्वेश्चंस को लिखने की जरूरत नहीं. आप लिखना चाहो अपने लेवल पे लिख लो प्रैक्टिस के लिए, बट मैंने नोट्स में आपको ये सब ऑलरेडी दे दिया है, राइट. So with this students we come to the end of this chapter, chemical reactions and equations. Please take I'm giving you one day, tomorrow also, today and tomorrow, to complete all your work of this chapter. And if you have any questions left which you want me to discuss, कुछ भी चीज़ जो आपको नहीं समझ आ रही है या 9th क्लास की कुछ चीज़ें हैं जो आप रिवाइज करवाना चाहते हो, तो प्लीज़ do let me know, and I shall revise that with you again. Alright, so once again this is Minish Gulati on behalf of Happy Model School. Please study hard, stay safe, and be sincere to your own self. All the best to you. Happy day. Bye bye to you.